Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Today we'll have the Hindu analysis dated 3rd September 2021. So let's start today's discussion. The first article states TOD highlighted in draft Regional Plan 2024. Related to this article, we had an article 2 days prior also stating about the changes that NCR region is doing for the development of that area. So it was related to the Yamuna pollution, then it was related to the biogas plants, then Yamuna pollution, then having a proper drone system for the river clearance, and then having a proper making up a proper buffer zone. Similarly, this article also is stating about the draft plan that NCR region has made for the development or the for changes in that area. So if you will see the article, as a part of urban regeneration, transit oriented development, that is TOD, and planned housing along with TOD corridors have been highlighting the regional plan of 2041. It's proper 2041 may, like they have an estimation that by 2041 will make such changes. So, apart from enhancement of the walkabilities and last mile connectivity from the higher dependence of public transport, multimodal integrations and changes have been made. So, there are some unique characteristics that have been involved in this TOD. So, from this article, we'll see about the plan, or we can say about the Delhi Master Plan of 2041. It is also known as Delhi Master Plan of 2041. So recently, currently, our Delhi department, or we can say the Development Authority, has decided the public consultation for the preparation. They consulted the public for the proper development of that area and made a master plan, which is known as Master Plan of 2041. It is basically a vision document for Delhi's development over next 2 decades by 2041. So, the Delhi Development Authority is in partnership. First of all, it is in partnership. It is in partnership with National Institute of Urban Affairs and is currently preparing or working on its project. The existing master plan of Delhi, which lays the planning guidelines, policies, and code of developments and space requirement, have more various activities that will end. Like basically, ये जो project है, it is for the next 2 decades में जो development आएंगे, and currently भी एक project चल रहा है जिसको हम दिल्ली मास्टर प्लान बोल रहे हैं, जिसके अंदर ये चीज़ बोला गया था कि बाई 2021 हम कुछ कुछ डेवलपमेंट्स करेंगे, जैसे कि ये प्लानिंग पॉलिसीज, देन कोड ऑफ डेवलपमेंट, स्पेस रिक्वायरमेंट, ये सब के रिलेटेड काम करेंगे. सो 2001 तो आ गया, तो नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट 2 decades की प्लानिंग के लिए एक नया मिशन या नया प्लान लाया जा रहा है. अब इसके अंदर हम देखेंगे इसके की पॉइंट्स क्या है या इसके की फीचर्स क्या हैं. सबसे पहले इट इज़ टॉकिंग अबाउट और इट विल फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी, inclusivity and equity. These are the three main focus areas of Delhi Master Plan of 2041, and it is looking forward for making arrangement or activities in such a way that the nature will be also be conserved in that area. ठीक है. So their main area of focus is the blue green infrastructure, then the cycling infrastructure, walking circuits, pedestrians and the colonies. ठीक है, ये सब पे मेन उनका फोकस रहेगा. Blue green is basically the water and nature infrastructure related to them. The cycling is giving proper walking areas or giving proper connectivity for the pedestrians in NCR or Delhi region. Then there is also a plan to develop space for योगा, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ओपन एयर एग्जीबिशंस, म्यूज़ियम. तो ये वाले प्रोजेक्ट के अंदर इसके लिए भी एक अलग से जोन बनाया गया है. एंड इसका मेन फोकस या जो इसकी वर्किंग है, इट विल गो अकॉर्डिंग टू SDG, दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ठीक है. सो हमारे पास इन टोटल हमें पता है देयर आर टोटल 15 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें से 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे दे विल डू वर्किंग. ठीक है. एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6, विच स्पीक्स अबाउट द क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन. ठीक है.
Sustainable Development Goal 6 speaks about the clean water and sanitation. Then Sustainable Development Goal 11, it speaks about the sustainabilities of the cities and communities. ठीक है, सस्टेनेबिलिटीज ऑफ द सिटीज एंड कम्युनिटीज. उसके बाद नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 is speaking about life below water. Life below water is for the aquatic animals. And then sustainable development goal 15 speaks upon life on earth, life on land. So for the animals, for the species who are on the land. तो ये चार गोल्स पे हमारा दिल्ली एनसीआर रीजन मेन काम करेगा. ठीक है, अब प्रॉपर इनका जो हमने देखा था ब्लू ग्रीन इंफ्रा पॉलिसी. ठीक है, तो थोड़ा ब्लू ग्रीन इंफ्रा पॉलिसी पे भी देख लेते हैं कि वो चीज़ क्या बताता है या क्या क्या उसके अंदर आती है. सबसे पहले ब्लू ग्रीन इंफ्रा पॉलिसी इज बेसिकली हमारे वाटर बॉडीज़ और लैंड बॉडीज़ दोनों का स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो. सो ब्लू इज बेसिकली इट रेफर्स टू दी वाटर बॉडीज़, लाइक आपके रिवर हो गए, देन सी हो गया, देन कैनल हो गए, देन पॉन्ड्स हो गए, देन वेटलैंड हो गया. ठीक है, उसके बाद ये जितने भी हमारे हैं ये ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बनते हैं. और ग्रीन की अगर हम बात करें तो ग्रीन इज ट्रीज, देन हैविंग प्रॉपर लॉन्स, ग्रीन लॉन्स, देन पार्क, देन फील्ड. तो इस सब के रिलेटेड का जो वर्किंग है उसको इन टोटल हमने बोला है ग्रीन ब्लू या ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. नाउ वील स्पीक अबाउट द वर्किंग ऑफ दिस प्लान. 2041 का जो मास्टर प्लान है, Delhi has around 50 big drain areas, that is the blue areas, 50 big areas, but due to their poor conditions or encroachments the areas have been severely affected. So उनका मेन फोकस सबसे पहले है कि ये सब एरियाज़ में जो पोल्यूशन हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से उनका ब्लू एरिया ग्रीन एरिया अफेक्ट हुआ है, उस पर काम करना चाहते हैं. इसके लिए एज पर द रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दिल्ली हैज़ जनरेटेड 3,800 million liters of sewage per day and half of this directly goes to the water body. ये रिपोर्ट यही बताता है कि एवरी डे जो है 3,800 millions of सीवेज जो है हमारा ड्रेनेज जो है वो कलेक्ट होता है, उसमें से हाफ ऑफ इट जो है वो डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में जाता है. सो जस्ट इमेजिन कि कितना लेवल में उधर की वाटर बॉडीज़ गंदे हो रहे हैं. ठीक है, सो ये सब जो वर्क है इसके मतलब मेन उनका फोकस इज टू ग्रीन एंड ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर. अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं? सो ये प्रॉब्लम एक है कि उनके पास प्रॉपर सर्विसेज नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग अपना मतलब वाटर एरिया और सैनिटेशन पे काम कर सके. देन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एजेंसीज़ का मतलब क्या है? जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, दिल्ली जल बोर्ड है, फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस है, इनके बीच में प्रॉपर वर्किंग नहीं होता, साथ में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है, विच इज़ एक्चुअली बिकमिंग अ ड्रॉबैक फॉर इट्स फंक्शनिंग. सो लेट्स सी क्या क्या और चीज़ें ये लोग इंक्लूड करते हैं इसमें, इसके वर्किंग में, एंड कितना डेवलपमेंट 2041 तक आता है दिल्ली एनसीआर रीजन में. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. The next article states, Indian biologist wins global award for turtle conservation. Now, this is a person whose name is Shailendra Singh. Mr. Shailendra Singh ने currently he has conserved almost it is stated 3 और 4 ऐसे अलग अलग turtles को उन्होंने बचाया है, which are on the edge of endangered or which are on the edge of extinction. So उसके रिलेटेड ये आर्टिकल आया है कि कौन से टर्टल्स को उन्होंने सेव किया है और उनकी वॉकिंग के लिए उनको कितने अवार्ड्स या किसने कंट्रीब्यूट किया है उस अवार्ड के लिए. So Indian biologist Shailendra Singh has been awarded the Belher Turtle Conservation Award for bringing 3 critically endangered turtle conservation species back from the brink of extinction. टोटल 3 ऐसे स्पीशीज़ को उन्होंने कंजर्व किया है या बचाने की कोशिश की है, which were on the edge of extinction, ख़त्म होने के कगार पे थे. The press statement issued by the headquarters of the Delhi Survival Alliances earlier this week said some of the species such as, जो species उन्होंने बचाने की कोशिश की है जो कि endangered है, एक है हमारे जिनको हम बोलते हैं रेड क्राउंड रूफ टर्टल. ठीक है, रेड क्राउंड रूफ टर्टल जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में भतागुर कछुआ बोलते हैं, भतागुर
कछुआ, ठीक है, विच इज नोन एज रेड क्राउन टर्टल, रूफ टर्टल. अनदर इज द नदन सी टेरापिन, जिसको भतागुर बसका बोलते हैं, भताकुर बसका, which is the northern river terrapin. And black soft shell turtle का साइंटिफिक नाम इज निन्सोनिया निग्रिकन. ब्लैक सॉफ्ट टर्टल जो है ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका है, इसके रिलेटेड कुछ टाइम पहले भी आर्टिकल आया था. तो डॉक्टर सिंह एंड हिज टीम्स एफर्ट्स आर लास्ट होप फॉर द वाइल्ड सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज ऑफ दिस टर्टल. अब इस अवार्ड के बारे में बात करते हैं. सो द अवार्ड हैज़ बीन बीस्टोन्ड बाय सेवरल ग्लोबल बॉडीज विच इन्वॉल्व टर्टल सर्वाइलेंस अलायंस, इंडिया की बॉडी है. देन IUCN के बारे में हमने देखा ही है. देन ये फ्रेश वाटर टर्टल स्पेशलिस्ट ग्रुप, देन टर्टल कंजर्वेंसी एंड टर्टल कंजर्वेशन फंड्स, ठीक है. सो ये कुछ बॉडीज़ है जिन्होंने इनका कोलैबोरेटिव अवार्ड दिया है टू मिस्टर शैलेश सिंह इनकी वर्किंग के लिए. अब ये आर्टिकल के थ्रू हम एक चीज़ और भी देख लेंगे विच इज़ अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ टर्टल्स इन इंडिया. कौन से ऐसे टर्टल्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंडियाज़ पर्सपेक्टिव एंड विच आर ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन. सो सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें, हम इस चीज़ को मतलब टर्टल को कंजर्व करने के लिए हम एवरी ईयर वी सेलिब्रेट दी वर्ल्ड टर्टल डे ऑन 23rd of May, ठीक है. 23rd of May को सेलिब्रेट किया जाता है विद डिफरेंट थीम्स. जैसे 2020 का जो थीम था इट वाज अडॉप्ट डोंट शॉप, ठीक है, ये थीम था टू कंजर्व देम. सो वर्ल्ड टर्टल डे एक एनुअल मीट है जो कि एक्चुअली 2000 से स्टार्ट हुआ है. फ्रॉम द ईयर 2000 वर्ल्ड टर्टल डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया टू कंजर्व देम. इट इज़ बीन ऑर्गेनाइज बाय अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है अमेरिकन टॉर्टॉइज रेस्क्यू की तरफ से ये इनिशिएटिव है टू सेलिब्रेट एवरी 23rd एज दी वर्ल्ड टॉर्टॉइज डे. एंड इट्स एम इज़ टू प्रोटेक्ट दी टॉर्टॉइज फ्रॉम इलीगल स्मगलिंग. ये चीज़ देखा जाता है कि एक्चुअली टॉर्टॉइज को या टर्टल को घर में रखना या फिर ऐसे रखना इज़ इलीगल. स्पेशली टर्टल्स का जो ये बैक एरिया होता है उसको लेके मतलब इट इज़ यूज्ड आफ्टर किलिंग देम, तो इलीगल स्मगलिंग की जाती है. सो टू सेव देम फ्रॉम दैट थिंग, ठीक है. फूड एंड इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है टॉर्टोइज का. उनका हैबिटेशन डिस्ट्रक्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारा ग्लोबल वार्मिंग भी अफेक्ट हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इलीगल वर्किंग. टू सेव फ्रॉम दैट थिंग हमारा जो अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू है उसने इसके लिए डे को सेलिब्रेट किया है. इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में जो हमारा नेशनल मिशन फॉर गंगा क्लीन है वो इन कोलैबोरेशन विद वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया साथ में ये डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है. अब थोड़ा सा हम टर्टल के बारे में पढ़ लेते हैं, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है. उनके बारे में पढ़े तो टर्टल्स आर दी रेप्टाइल्स ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ टेस्ट्यूटाइन्स species which have a special bony and cartilaginous shell. ये जो एरिया है cartilaginous shell and it is developed by their rib and acting as a shield for them obviously, ठीक है. ये टर्टल्स या टर्टल आपको कहाँ मिलेंगे, या तो आपको फ्रेश वाटर्स में मिलेंगे या तो सॉल्ट वाटर में मिलेंगे. यही दो कंडीशंस में आपको टर्टल्स मिल सकते हैं. टॉर्टोइज आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर टर्टल्स बिकॉज दे आर लैंड ड्वेलिंग, ठीक है. यही बेसिक डिफरेंस है टॉर्टोइज और टर्टल का जो यूजुअली लोगों को पता नहीं रहता उतना. बट टॉर्टोइज जो होता है दे आर लैंड, मतलब वो लोग ज़मीन पे भी रह सकते हैं, वेरएज टर्टल जो होते हैं दे आर प्रॉपर एक्वेटिक एनिमल, ठीक है. वो मतलब प्रॉपर अगर हम बात करें टर्टल्स मतलब टॉर्टोइज जो है वो सिर्फ ज़मीन पे रहता है, वेरएज टर्टल जो है वो पार्शियली एक्वेटिक है, वो ज़मीन पे भी रह सकता है एंड पानी में भी रह सकता है. दे आर कॉल्ड एज टर्टल्स आर कॉल्ड एज कोल्ड ब्लड स्पीशीज़, ठीक है. एंड दे हैव हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर उनका बहुत हाई होता है मतलब बाकी सब स्पीशीज़ से अगर हम देखेंगे इनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है. दे हैव अ वेरी स्लो मेटाबॉलिज्म and they can survive without food or water for a very long time. According to IUCN के हिसाब से मोस्ट ऑफ जो टर्टल और टॉर्टोइज जो हैं अभी जो बचे हुए हैं दे आर बीन क्लासिफाइड एज दी एंडेंजर्ड स्पीशीज़, क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज़ या वर्नेबल लिस्ट में उनको क्लासीफाई किया जाता है. अब उनकी सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है एनवायरनमेंट में या इतना क्यों
उनको कंजर्व करने की बात हम कर रहे हैं. So they play a very important role when it comes to scavenging of the river bodies. Rivers में जो dead organs रहते हैं या जो dead species जो मिलते हैं उसको, जैसे कि हम अगर फूड चेन में बोले तो ईगल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वल्चर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर स्कैवेंजिंग पार्ट, फॉर क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. सिमिलर वे में टर्टल्स जो हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक्वेटिक लाइफ में, टू क्लीन द एक्वेटिक areas because they are the scavengers who eat that dead organic materials which are left in the seas. तो water pollution ख़त्म करने में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है. Then they also help for maintaining the healthy fish stocks in the water. ठीक है, कैसे? क्योंकि they give a proper habitat over their bodies, जिसकी वजह से वाटर में प्रॉपर हेल्दी फिश स्टॉक्स आपको अवेलेबल मिलेंगे. तीसरी बात, थर्ड थिंग वी कैन से, जो ये टर्टल का पॉपुलेशन होता है इट कैन एक्चुअली इम्प्रूव द सी ग्रीस इकोसिस्टम. ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ये स्कैवेंजर्स का रोल करते हैं. सो आपको जो ग्रासेस मिलते हैं वाटर में, जो सीवीड भी होते हैं, सी ग्रासेस होते हैं, उसको दे कंज्यूम इट, कहीं ना कहीं वाटर में सी जो कार्कासेस होते हैं और ये सब को ख़त्म करने में वो मदद करते हैं. सो टर्टल्स आर ऑल्सो द ट्रांसपोर्टर्स फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स ऑफ एनर्जी द कोस्टल रीजन. ठीक है, नाउ वी स्पीक ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ टर्टल्स इन इंडिया. इंडिया में कौन से टर्टल्स कंजर्व किए जाते हैं. सो ऐसे 5 अलग स्पीशीज़ हैं जो कि इंडिया में उनको सेव किया जा रहा है, जैसे कि ऑलिव रिडले टर्टल. ठीक है, ऑलिव रिडले टर्टल सबसे पहला आता है. देन आता है ग्रीन टर्टल, नेक्स्ट इज दी ग्रीन टर्टल. ग्रीन टर्टल के बाद आता है लॉगर हेड टर्टल. ठीक है, लॉगर हेड टर्टल. देन इज हॉक्स बिल. ठीक है, हॉक्स बिल. एंड द लास्ट इज द लेदर बैक टर्टल. लेदर बैक टर्टल. ये 5 ऐसे स्पीशीज़ हैं, ठीक है, जो कि कंजर्व करने के लिए इंडिया का इनिशिएटिव है. क्योंकि ऑलिव रिडले टर्टल हो गया, लेदर बैक टर्टल हो गया, लॉगर हेड टर्टल हो गया, IUCN ने इन लोग को थ्रेटन्ड स्पीशीज़ में क्लासीफाई किया है. वेयरएज हॉक्स बिल जो है, हॉक्स बिल इज़ क्लासीफाइड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और जो ग्रीन टर्टल है उसको एंडेंजर्ड के स्पीशीज़ में एंडेंजर्ड की लिस्ट में क्लासीफाई कर दिया है. एंड इंडिया के पर्सपेक्टिव से दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड गंगा रिजर्वेशन प्रोग्राम में भी दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देम. सो ये 5 कुछ ऐसे स्पीशीज़ हैं टर्टल्स के विच आर ट्राई टू बी प्रोटेक्ट. सॉफ्ट हेड जो टर्टल हमने देखा, ब्लैक सॉफ्ट हेड, वो भी कहीं ना कहीं एंडेंजर्ड की लिस्ट में अभी तक नहीं आया है, बट कहीं ना कहीं हम आगे वो आसार देख रहे हैं बिकॉज दे आर बिन क्रिटिकली वनरेबल टू द एनवायरमेंट्स. ठीक है, तो करेंटली ये 5 टर्टल्स हैं जो कि इस लिस्ट में आते हैं. सो दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ओशंस इकोसिस्टम बाय मेंटेनिंग अ प्रॉपर हेल्दी सी ग्रासेस एंड कोरल रीफ्स फॉर देम, एंड बाय प्रोवाइडिंग वी कैन से अ गुड हैबिटेट टू द मरीन लाइफ, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस इन द मरीन फूड वेब. ठीक है, जैसे कि वल्चर्स हमारे फूड चेन में है, वैसे मरीन में टर्टल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व देम. सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल थोड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया था. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़. द नेक्स्ट आर्टिकल स्टेट्स प्रेपरेशन फॉर डेफएक्सो 2020 रिव्यूड. ठीक है, डेफएक्सो की अगर हम बात करें, सो इट इज़ अ जॉइंट वी कैन से एग्जीबिशन है, एक प्रॉपर हम बोल सकते हैं कि एक इवेंट है जो कि अब 2022 में कंडक्ट होने वाला है विद इन द कोलैबोरेशन ऑफ डिफेंस मिनिस्टर एंड द CM ऑफ गुजरात. ठीक है, CM ऑफ गुजरात, दैट इज गुजरात गवर्नमेंट और डिफेंस मिनिस्टर के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, अकॉर्डिंग टू विच दे विल कंडक्ट एन इवेंट इन द ईयर 2022 नोन एज डेफएक्सो. थोड़ा डेफएक्सो के बारे में हम आर्टिकल में देखते हैं कि क्या चीज़ बताई गई है. सबसे पहले डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड गुजरात चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जॉइंटली रिव्यूड द प्रेपरेशन ऑफ डेफएक्सो 2022 and it will be held first time in the Gujarat at the meeting at Kevadia on Thursday. This is the 12th edition
इससे पहले 11 ऐसे हो चुके हैं एडिशंस. दिस विल बी द 12th एडिशन ऑफ द बेनिफिशियल डेफेक्सो. एंड डेफेक्सो की अगर हम बात करें, इट इज़ द इंडियाज फ्लैगशिप, दैट इज इंडियाज फ्लैगशिप इवेंट. फ्लैगशिप अगर हम बात करें तो जैसे कि ऐसे कुछ इवेंट्स, ऐसी कोई चीज़ है जो कि उस जगह के बारे में बताता है या उस जगह का बहुत यूनिक फीचर है. जैसे कि हम बोल सकते हैं ताजमहल इज़ दी फ्लैगशिप ऑफ दी इंडिया. ठीक है, वैसे ही जो इवेंट्स, अगर मिलिट्री इवेंट्स की बात करें तो मिलिट्री इवेंट्स में ये ब्रांड एम्बेसडर का काम करता है ये इवेंट. ठीक है, जैसे और एग्जांपल्स अगर हम बात करें तो और क्या आ सकता है, हमारे कल्चर. ठीक है, इंडियाज़ कल्चर इज़ अ फ्लैगशिप ऑफ इंडिया. ठीक है, क्योंकि वो इंडिया को यूनिक दिखाता है. सिमिलर वे में अगर हम देखें बात करें तो डेफेक्सो जो इवेंट है वो इंडिया का फ्लैगशिप इवेंट होता है, क्योंकि इसमें कैसा होता है, आपका लैंड, नेवल, ठीक है, एयर, लैंड, नेवल, एयर, और एज वेल एज जो हमारे होमलैंड सिक्योरिटीज़ हैं, होमलैंड सिक्योरिटी, ये सब मिलकर जो है अपना एक तरह का एग्जीबिशन होता है कि हमारे पास क्या अवेबिलिटीज़ है इंडिया वेयर डज इंडिया स्टैंड्स, इंडिया किस पोजीशन पे आ चुका है, इंडिया का डेवलपमेंट कितना हो चुका है विथ रिलेटेड टू लैंड, नेवल, एयर एंड होमलैंड सिक्योरिटी. तो 2022 में ये जो इवेंट है ये इस बार गुजरात में होगा अगले साल, गांधीनगर में. एंड द डेट दैट इज़ फिक्स्ड इज़ फ्रॉम मार्च 10 to 13. मार्च 10 to 13 के बीच में ये इवेंट होने वाला है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स गिवन बाय डिफेंस मिनिस्टर. तो एक प्रॉपर मेमोरेंडम साइन हुआ है दोनों के बीच में. और इस बार का जो है 2022 का जो होने वाला है इवेंट, इट इज़ एन हाइब्रिड इवेंट, क्योंकि इस बार की जो एग्जीबिशन जो इन लोगों ने प्लान किया है वो हेलीपैड एग्जीबिशन सेंटर होगा. ठीक है, मतलब हेलीपैड एग्जीबिशन होगा. देन सेमिनार्स होगा. सेमिनार जो है प्रॉपर महात्मा गांधी कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर पे होने वाला है. और एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस दिखाया जाएगा जो भी वेपन्स हैं और डिफेंस प्लेटफॉर्म जो भी अवेलेबल है. सो साबरमती रिवर के पास अहमदाबाद में ये चीज़ डिसाइड किया गया है कि एक लाइव परफॉर्मेंस या लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे कि व्हाट इंडिया हैज़ गेन through this years in defense. So the aim is to build upon the visions to achieve a self-reliance in defense and reach 5 million defense export target by 2024. 2024 तक का ये टारगेट बनाया गया है. ये जो इवेंट है, ये जो एग्जीबिशन है, ये ऑलमोस्ट 75,000 स्क्वायर मीटर्स में है और इसमें पार्टिसिपेशन इज़ मोर देन 1000 एग्जीबिटर्स इसमें पार्ट लेने वाले हैं. सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अब तक प्लान की गई है रिलेटेड टू डेफेक्सो ऑफ द ईयर 2022 जो कि होगा. ठीक है, 22 से पहले जो ये जो 12th एडिशन होगा, इससे पहले जो हुआ था विच वॉज द 11th एडिशन, ठीक है, वो हुआ था 2020 में. तो थोड़ा सा 2020 का भी देख लेते हैं कि कैसे हुआ था और कहाँ पे हुआ था. सो डेफ एक्सपो 2020 का जो इवेंट था वो लखनऊ में हुआ था. ठीक है, एंड इट वाज फ्रॉम 5th to 9th Feb. 5th to 9th Feb के बीच में ये हुआ था. दैट वाज द 11th एडिशन ऑफ दिस एग्जीबिशन. और हाँ, 11th एडिशन हुआ था. और उससे पहले जो था 2020 से 2 साल पहले 2018 में हुआ था. 2018 में जो हुआ था वो चेन्नई में हुआ था विच वॉज इन तमिलनाडु. सो 2020 का जो हुआ था उनका मेन एम या थीम था दैट वाज इंडिया इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब. ठीक है, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा इंडिजिनस प्रोडक्ट्स में बिलीव कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि खुद से वो अपने प्रोडक्ट्स बनाएं. तो 2020 का भी एम यही था, इंडिया इमर्जिंग द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब. एंड इट ऑल्सो फोकस ऑन द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डिफेंस. ठीक है, सो ये एक चीज़ हुआ था. फिर डेफ एक्सपो 2020 जो था, इट एक्चुअली ब्रॉट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एंड देयर सॉल्यूशंस जो कि डिफेंस में यूज़ हो सकता है. सो इट शोकेस एन कॉम्प्रिहेंसिव स्पेक्ट्रम ऑफ इंडियाज एरोस्पेस. ठीक है, उस टाइम पे भी एरोस्पेस, डिफेंस और सिक्योरिटी इंटरेस्ट दिखाया गया था दैट टाइम.
ठीक है। साइड बाय साइड इसके साथ इंडिया का मतलब 2020 में जब डेफेक्सो कंडक्ट किया जा रहा था, उसके साथ ही इंडियाज 5th इंडिया रशिया मिलिट्री इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस भी हेल्ड हुआ था उसी के साथ, साइड बाय साइड, जिसमें जो है प्रॉपर रशियन ओरिजिन इक्विपमेंट्स जो हैं वो सब हाईलाइट किए गए थे और इंडियन ओरिजिन इक्विपमेंट्स भी दिखाया गया था. सो दिस वाज सम important points about DEF Expo 2020 and DEF Expo 2022 which will be held in next year. Now we'll move to the last article. The last article states that Bhagjan oil well fire, a new panel to assess the damages. ठीक है. So ये हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के 10 मेंबर्स एक कमेटी बनाए हैं, 10 मेंबर्स के एनजीटी के हटाकर, जो कि प्रॉपर ये जो इवेंट हुआ था उसके रिलेटेड डिस्कशन करेंगे. तो पहले इस आर्टिकल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, आर्टिकल क्या बोलना चाह रहा है, एंड देन हम देखेंगे बगजन ऑयल फायर हुआ क्या था, किधर है, कौन सी जगह इफेक्ट हुई थी, ये सब. So the Supreme Court on Thursday formed an expert committee led by the former Guwahati High Court Judge Justin B.P. Katake to assess the damages and the cost of reparation of Dibru-Sekhova National Park. Dibru-Sekhova National Park and the surrounding ecological fragile areas of Assam, which happened because of the fire that happened in May 2020. So Justice Katake's committee substitutes the National Green Tribunal's 10-member committee led by Assam Chief Secretary. So जो NGT का 10-member committee जो इस पे काम कर रहा था, उसके जगह पर एक नई कमेटी लाई गई है जो कि उसकी फंक्शनिंग पूरी बताएगी और जो भी रिपोर्ट सबमिट करेगी. So the bench led by Justice D.Y. Chandrachud said the committee's work would require an extensive domain expertise and was an adjudicatory nature. Moreover, the court took exceptions of having the oil chief on board at the very same committee. The court recorded that this would be a serious conflict of interest. Actually हुआ क्या था, ये जो 10 जो मेंबर्स बनी थी उसमें जो फायर जहाँ पे हुआ था जिस ऑयल कंपनी के अंडर, उसकी भी एक मेंबर्स को रखा था. तो बोला था कि ये बहुत अनफेयर होगा अगर आप उसको रखोगे, क्योंकि डिसीजन कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होगा. So the court requested the committee to begin its work expeditiously and submit the interim report within a month. Then the court directed oil to pay for the committee's expenses. The Environment Ministry has ordered to appoint a nodal officers to facilitate the committee's work. ठीक है. अब बेसिक इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ, हुआ क्या था. सो 27 मई 2020, ठीक है, 27 मई 2020 में एक फायर गैस नेचुरल गैस लीक होने की वजह से बहुत बड़ा फायर लगा था. ठीक है, जो नेचुरल गैस था दैट वाज ऑयल इंडियाज लिमिटेड भगजन ऑयल फील्ड, जो कि आसाम में है, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है, सो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट विच इज़ इन आसाम, वहाँ पर एक गैस लीक की वजह से फायर हुआ था विच एक्चुअली हार्म्ड द नेशनल पार्क दिब्रू सेखवावा नेशनल पार्क और उसकी आजू बाजू की इकोसिस्टम के एरियाज. ठीक है, so the 2020 Assam gas and oil leak, also referred as Bhagjan gas leak, is a natural gas blowout that happened in Oil India Limited Bhagjan oil field in Tinsukia district on 27th May 2020. So ये जो blowout हुआ था फायर का, it happened in the well number 5. ऐसे उनके 7 वेल्स हैं जिसमें से वेल नंबर 5 पे ये गैस लीक हुआ था, और इसका ये जो है गैस जो है ये कंटिन्यूसली बहुत टाइम तक चला था गैस. ठीक है, बहुत लोगों की मौत हुई थी. ठीक है, मौत ज़्यादा की नहीं हुई थी बट इंजरी बहुत लोगों को हुआ था. एंड नेचुरली अगर हम बात करें तो नेचुरली हमारा लेक ये जो है दिब्रू नेशनल पार्क वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था और उसके आजू बाजू का रीजन बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था. अब थोड़ा सा दिब्रू सेखवावा नेशनल पार्क के बारे में भी देख लेते हैं कि क्यों वो इम्पोर्टेंट है जगह और क्या चीज़ें है. सो ये जो ऑयल फायर हुआ था, इसके वजह से दिब्रुआ नेशनल पार्क का वेटलैंड, ठीक है, वेटलैंड के साथ भील का मतलब होता है लेक.
ठीक है। वहाँ पे ही एक लेक है डिब्रुआ नेशनल पार्क में, जिस लेक का नाम है मंगूरी बाताबुक नेल, मंगूरी मोटाबुंग भील। सो वेटलैंड, मंगूरी भोटामुंग भील और हमारा डिब्रुआ सेकोवा नेशनल पार्क, ये तीनों जगह बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए थे। ठीक है। ये जो हमारा नेशनल पार्क है, इट इज़ प्रॉपरली सिचुएटेड इन आसाम। आसाम का डिब्रूगढ़ जो है जो कि तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ पर हमारा ये नेशनल पार्क है। ये नेशनल पार्क को बायोस्फीयर रिजर्व अनाउंस किया गया था 1997 में। ठीक है। दिस नेशनल पार्क वाज अनाउंस्ड एज बायोस्फीयर रिजर्व इन 1997। और ये जो पार्क है, ये जो नेशनल पार्क है, इट इज़ बाउंडेड बाय रिवर्स लाइक ब्रह्मपुत्र एंड लोहित रिवर्स इन दी नॉर्थ। ठीक है। ब्रह्मपुत्र है, नॉर्थ की तरफ लोहित रिवर आता है, और साउथ की तरफ जो है, नॉर्थ की तरफ लोहित है एंड साउथ की तरफ जो है दैट इज दिब्रू, साउथ की तरफ दिब्रू रिवर से सराउंडेड है। इट इज़ बेसिकली, अगर इसकी इकोलॉजी या इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ मॉइस्ट सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड मॉइस्ट मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट। इट इज़ द लार्जेस्ट salix swamp forest in the northeastern India which has a tropical monsoon climate and a hot summer। ठीक है। भील की बात करें तो भील का सिंपल मतलब होता है लेक। वहाँ पर एक लेक है जो मंगूरी लेक जिसको हम बोलते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट वेटलैंड एरिया इन दैट, मतलब डिब्रू सेकोवा में सबसे बड़ा वेटलैंड जो है वो ही मंगूरी भील है। देन इट इज़ वेरी क्लोज टू थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। इट इज़ अ प्लेस जहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटिव बर्ड्स आते हैं। ठीक है। फॉर देयर नेस्टिंग ग्राउंड के लिए। एंड वो जो एरिया है उसको इम्पॉर्टेंट बर्डिंग साइट भी अनाउंस किया गया है बाय द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। ये जो है प्रॉपर हमारा जो दिब्रू है साउथ में, दिब्रू रिवर के पास है, एंड ये एक मतलब ब्रह्मपुत्र के चैनल के पास भी फॉर्म होता है। अगर माइग्रेटिव बर्ड्स अगर बोले, माइग्रेटिव बर्ड्स को छोड़ के जो बर्ड्स वहाँ पे मिलते हैं जैसे पिजन टेल जकाना, देन रूडी शेलडक, येलो वैगटेल, पर्पल स्वैम्प फेन, देन एशियन ओपन बिल्स, देन यूरो एशियन कोट्स, ये कुछ बर्ड्स हैं जो वहाँ पे मिलते हैं। सो ये कुछ चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थे फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि किधर है, जोग्राफिकली किस लोकेशन में है, कौन से रिवर्स आते हैं, ये सब। सो आई होप सो आज का न्यूज़ आपको क्लियरली समझा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।